Hello everyone. So today we are going to discuss UC 2022 paper MSQ part 2. We have already completed part 1. So if you have not seen, so first you have to see those 9 questions and then further you can see this part. So question number 10 is figure P can be created by tiling 4 identical pieces. The pieces should not overlap while tiling. Which of the pieces shown in the options can be used to create figure P, assuming that you can rotate and flip them. So in this figure you have to choose the options in the A, B, C and D, and by flipping or by rotating you have to fill this place, that is P, right? So if we start from the option A, so you can use either this shape or you can use either this shape, right? It means flipping is also allowed, rotation be allowed है और flipping भी allowed है. So if we rotate this one to the anti-clockwise, right? Because this gap I can see, so I can fill this part, this gap can be filled by this part. So what we can create, yes, right? So this gap can be come to this part. All right, then if you see again, if you rotate this into anti-clockwise, so you can fill this part, and if I change the color, okay, so this can be created. So first what you did, you actually rotated this into this way, right? So ये part आपका यहाँ पे आ रहा है ना, and then आपने इसको ऐसे rotate किया तो ये part आपका यहाँ पे आ रहा है. All right, then if you can see again, this part can be created by using this. So how we can create, how we can form, yes. So this is 1, this is 2, this is 3 and this remaining is also 4. So 4 tiles can be created by using A option. Alright, if we try with the option B, so again in B also you can use the flipping part. If I make this one, in this way, so you can use this figure in this way also. इसको as it is यहाँ पे put करेंगे. So how we can put, 4 boxes यहाँ पे आ जाएंगे and then around 3 blocks are there, right? So ये 4 यहाँ पे complete हुआ और ये यहाँ पे 3 हुआ. Again what you can see here, 4 boxes are there, right? So 4 boxes are there. So what you can do, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, these 4 boxes, this one, ठीक है, इसको यानी कि ऐसे रोटेट करके, ओके. देन व्हाट यू कैन डू, अगेन यहाँ पे भी this way, right? So 1, 2, this is 3 and this is 4. all right, then उसके बाद if we try with the C option, C option में देखेंगे अगर, so problem is with this part, right? कहीं से भी आप गैप ये फिल नहीं कर पाओगे, है ना.
सो फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फ्रॉम द ऑप्शन यू कैन ईजिली सी कि ये पार्ट ऐसा कुछ यहाँ पे अगर गैपिंग होता तभी ये चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे अटैच करना, राइट? वरना अगर एक सिंपल एच आप कैसे भी लगाओगे ये यहाँ पे नहीं फॉर्म होगा, राइट? सो दिस बिकॉज ऑफ दिस गैप यू कैन नॉट फिल दिस पार्ट और दिस पार्ट. ओके, इफ वी सी विद द ऑप्शन डी, सो डी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कुछ ऐसे डिवाइड हो रहा है. ओके, सो इफ वी स्टार्ट विद द अपर पार्ट, we can also make the flipped part. Right? Okay. अगर इसको ऐसे फ्लिप करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? और अगर हम इधर से लगाएंगे, इस वाले को यहाँ पे लगाएंगे, देन 4 1 2 3 4, यस, है ना? तो ये ऐसे बनेगा. सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, बट ये 2 जो बच रहा है यहाँ पे आप कुछ भी फिल नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, सो इसकी वजह से सी भी ऑप्शन नहीं होगा और डी भी ऑप्शन नहीं होगा. सो योर आंसर इज ओनली ए एंड बी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शोन बिलो इज एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ cuboidal glass container of size 2 cross 2 cross 3 units. It contains a solid wooden block and some water. When tilted, which of the options will be the side views of the glass container? So here glass container is given. This bottom part is the wooden part, जो कि आप अगर tilt करोगे तो वो shape नहीं लेगा. आफ्टर टिल्टिंग ऑल्सो ये सेम शेप में ही रहेगा, सेम वॉल्यूम भी रहेगा इसका. वाटर जो है अपना शेप को चेंज करता है, राइट? अपने फॉर्म को चेंज करता है, बट इट विल नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम, है ना? उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. सो दिस इज द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू सी इन दी ऑप्शंस. अगर हम इस एरिया की बात करें, सो दे हैव गिवन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, राइट? यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी 3 है, ये 2 है और ये भी 2 है आपकी. दिस वन इज अगेन 2, राइट? बट इफ यू कैन सी, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस ग्लास कंटेनर, दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ, राइट? सो ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा कि इन तीनों का जो डिस्टेंस है दैट इज सेम. तो एक की हाइट कितनी आ जाएगी? 2/3. सिंगल की हाइट जो आ जाएगी आपकी दैट इज 2/3. यहाँ पे 2 ही रहेगा. सो इफ वी चेक विद द ऑप्शन ए, राइट? इफ वी चेक विद द ऑप्शन ए, एक चीज और ध्यान रखना है, द वॉल्यूम ऑफ द एयर, और हियर यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ गैप, और यू कैन से एयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. ठीक है? वुडन का कोई पार्ट है नहीं ज़रूरत, तो हम उसके बारे में नहीं कुछ बोल रहे हैं, बट तीनों का जो वॉल्यूम है दैट इज सेम, है ना? क्योंकि एरिया मतलब द हाइट, विड्थ एंड लेंथ ऑल आर सेम, इसी वजह से वॉल्यूम भी सेम है. टिल्ट करेंगे तभी वॉल्यूम ऑफ एरिया शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. सो अगर आप ऑप्शन ए में ध्यान से देखो, आफ्टर टिल्टिंग वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, तो ये जो पार्ट है वो सिमेट्रिकल लगना चाहिए इस पार्ट के. सारे ऑप्शंस में आपको बस यही चेक करना है दैट यू हैव टू चेक दिस पार्ट इज शुड बी सिमेट्रिकल टू दिस पार्ट, राइट? सो इसमें सेम है, दैट इज व्हाई योर आंसर ए इज करेक्ट. यहाँ पे कुछ भी आपको वॉल्यूम नहीं निकालना है, यहाँ पे ये वैल्यूज बस आपको बस बताने के लिए दिया हुआ है दैट डिस्टेंसेज आर सेम, राइट? इसका कुछ कैलकुलेशन से मतलब नहीं है. देन इफ यू सी इन द ऑप्शन बी, आप अगर ठीक से इसको जज कर पा रहे हो, सो दे आर क्रिएटिंग अ ट्रेपेजियम, राइट? बट दे आर अनइक्वल ट्रेपेजियम और अनसिमेट्रिकल ट्रेपेजियम. दिस पार्ट इज लुकिंग बिगर देन दिस पार्ट, है ना? जो गैप वाला पार्ट है दैट इज लुकिंग मच बिगर देन द लिक्विड पार्ट. इट मीन्स ऑप्शन बी इज रॉन्ग. इफ वी कम इन द ऑप्शन सी, they are also creating the trapeziums and both the trapeziums are equal.
लिक्विड वाले पार्ट का ट्रेपेजियम देख लो या इसका ट्रेपेजियम देखो, बोथ आर इक्वल, राइट? इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन इफ यू सी द ऑप्शन डी, सो डी में गैप वाला पार्ट छोटा लग रहा है और लिक्विड वाला पार्ट ज्यादा लग रहा है, यानी कि जब टिल्ट किया तो लिक्विड थोड़ी ना बढ़ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ए एंड सी आर करेक्ट। Four solid pieces P, Q, R, S are arranged to form a cube. Which of the cubes shown in the options is are not possible? है ना, यहाँ पे आपको 4 क्यूब्स दिए हैं, P, Q, टू क्यूब्स के आपको सॉलिड्स दिए हैं, P, Q, R, S अलग अलग कलर्स के हैं। तो कैसे भी आप इनको लगाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रेड और येलो आपका डायगोनल में आ जाए, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट रेड और येलो आपका डायगोनल में आ जाए। वही आपको निकालने हैं जो गलत है ना? आपको आंसर कौन से निकालने हैं? जो रॉन्ग है। यहाँ पे देखो नॉट लिखा हुआ है एंड दैट इज इन दी कैपिटल। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको देखना होता है दैट व्हाट दे हैव आस्क्ड, उन्होंने पॉसिबल आंसर्स पूछे हैं या विच इज नॉट पॉसिबल व्हाट दे हैव आस्क्ड, राइट? सो अगर हम ऑप्शन ए में चलते हैं, ठीक है? सो ऑप्शन ए में ठीक है, ग्रीन के नीचे ये आ गया आपका, पर्पल के नीचे भी ग्रीन होगा, पर्पल के ऐसे में ग्रीन है, देन रेड विद दिस वन, ऑल राइट, ठीक है? रेड आपका 2 है, येलो साइड होगा जो दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना? करेक्ट है मतलब ये आंसर नहीं होगा। देन विद द ऑप्शन बी इफ वी सी, ओके, येलो के साथ ये है, पर्पल के साथ ग्रीन, ओके, सो पर्पल यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे है, राइट? पर्पल के नीचे ग्रीन होना चाहिए एंड दैट शुड नॉट बी विजिबल, विजिबल नहीं होना चाहिए ग्रीन। इट मीन्स बी इज नॉट पॉसिबल एंड बी इज योर आंसर। लेट्स चेक विद द सी। रेड के नीचे आपका, ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्रीन के ऊपर पर्पल, ऑल राइट, ठीक है, येलो के उधर भी रेड होगा, ओके, yes, so if we see with this option, इसके बगल में ये आ गया, ठीक है, ये है, देन ब्लू के नीचे ग्रीन है, ऑल राइट, पर्पल के नीचे ये है, ठीक है, और येलो के बगल में रेड है, ठीक है, यानी कि रेड के नीचे रेड आया है। सो इट मीन्स सी इज पॉसिबल, सो सी इज नॉट अवर आंसर। डी में आते हैं। सो डी के साथ प्रॉब्लम क्या है, चलो देखते हैं। यहाँ पे है आपका ब्राउन, और ब्राउन बीच के नीचे है आपका रेड, ठीक है, येलो के लेफ्ट में रेड आ गया, ठीक है, देन पर्पल के इधर ग्रीन है, सो पर्पल के नीचे आपका, अच्छा, पर्पल यहाँ है और ग्रीन यहाँ पे है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। इतना दूर आप एक ऐसे साथ में अगर क्यूब्स है तो आप वो लगा नहीं सकते हो। इट मीन्स डी इज नॉट पॉसिबल एंड डी इज योर आंसर। इट मीन्स योर आंसर्स आर बी एंड डी। Next is a contractor has a set of ceramic tiles of which one tile is shown on the left. Which of the options shows the pattern created by using this tile, है ना? तो आपके पास क्या एक सिरामिक टाइल दिया हुआ है और उस सिरामिक टाइल को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट फ्लिप, राइट? क्योंकि यहाँ पे सिरामिक टाइल्स बोला गया, हम कभी भी सिरामिक टाइल को फ्लिप करके नहीं लगा सकते हैं, यानी कि मिरर इमेज इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप लिख लो मिरर इमेज नॉट पॉसिबल और फ्लिपिंग नॉट पॉसिबल, है ना? अगर मेंशन किया होता तो बात अलग होती। यहाँ पे ओनली रोटेशन इज पॉसिबल, ओनली रोटेशन इज पॉसिबल। तो आप बस ये देख लो कि कहाँ पे रोटेशन करके लगाया गया है और फ्लिपिंग नहीं हुई है, ठीक है? सो विच ऑफ द ऑप्शंस आर क्रिएटेड। सो यहाँ पे आप देखो तो ये वाला जो टाइल है वो ये वाला ऐसे एज इट इज लगा दिया गया है, ठीक है, और इसको क्या करा गया है, आप रोटेट करोगे 2 बार, आप इस वाले टाइल को रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल रोटेट, यस, और सेम टाइल, ये तीनों तो सेम टाइल है,
और इस वाले को रोटेट करके लगाया जाए, इट मीन्स ए इज करेक्ट, राइट। देन इफ वी कम विद द बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन में यस ये वाला टाइल एज इट इज, पहले तो आप डिवाइड कर लो इसको, ऑलराइट ये वाला एज इट इज लगा दिया गया है, इसको रोटेट करोगे तो ये वाला आ जाएगा, देन यू विल रोटेट 90 डिग्री तो ये वाला आ जाएगा, एंड देन यू विल अगेन रोटेट तो ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, इट मीन्स बी इज ऑल्सो पॉसिबल। देन इफ वी सी इन दी सी ऑप्शन, सो यस अच्छा सी में इफ यू सी मिरर इमेज बने हुए हैं, है ना, इसका मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये, अगेन मैंने बोला था ऊपर मिरर इमेज इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन में कभी भी मिरर इमेज नहीं आता, इट मीन्स सी इज रॉन्ग, राइट। डी में अगर हम देखते हैं, सो अगेन डी में भी सेम चीज आपको दिख रही है, द रोटेशन इज गिवन, सिमेट्री यहाँ पे आपको दिख रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है टाइल, है ना, इस टाइल का मिरर इमेज इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स डी इज रॉन्ग। कितना भी किसी टाइल को रोटेट कर लो, मिरर इमेज नहीं आती है उसकी। Yes, next question, which of the options can be made using all the 4 pieces shown in the top row, flipping the pieces is allowed, all right। so इस क्वेश्चन में अगेन फ्लिपिंग दिया हुआ है, तो इनको आप फ्लिप करके बना सकते हो। सो इसको आप टैनग्राम्स की तरह देख सकते हो, पीसेस दिए हुए हैं, कौन से पीसेस पॉसिबल है इनमें ड्रॉ करना, कौन से पीसेस को यूज करके आप ये ऑप्शंस बना सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो इफ आई कैन डिवाइड दिस वन, सो ये कुछ ऐसे डिवाइड हो रहा है, ओके यहाँ पे ये कुछ ऐसे डिवाइड हुआ है, इस लाइन को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, एंड देन यू कैन कट दिस पार्ट, सो ऑलराइट, सो ये वाला है, ये वाला पार्ट फर्स्ट, this is the second one, this is the second one, and this one third, and this one is last. Yes, so A is possible, so A is your answer, right। if we go with the option B, so B को अगर हम डिवाइड करना चाहें, so ये स्ट्रेट लाइन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, and then you can also connect in this way, है ना, ट्राइंगल तो आपको लाना ही है छोटा वाला। then okay, so 1 2 and only 3 are there, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, बट लास्ट वन इज नॉट प्रेजेंट, है ना, so इसलिए आपका बी ऑप्शन रॉन्ग है। देन इफ वी सी इन द ऑप्शन सी, अगेन इसको डिवाइड करो, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे कनेक्ट होगा, ऑलराइट, ऑल दी 4 फिगर्स आर देयर, इट मीन्स सी इज करेक्ट, ऑलराइट। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, एंड देन वी कैन क्रिएट दिस पार्ट ऑल्सो। अच्छा ट्राइंगल के लिए एक और बना सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 1 2 3 and 4, ऑल दी ऑप्शंस आर देयर, इट मीन्स A C and D आर करेक्ट, B इज नॉट देयर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अ पजल board can be covered completely using the puzzle pieces, 6 of which are shown below. Which of the pieces in the options can be used along with these 6 pieces to cover board completely? Flipping and rotating of the pieces is allowed, overlapping of the pieces is not allowed. Overlapping is given, that is not allowed, so अच्छा ये not allowed है, एंड द फ्लिपिंग एंड द रोटेशन इज अलाउड, है ना। तो ये बहुत अच्छे से आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें अलाउड है। एक पजल बोर्ड दिया हुआ है आपको, एंड पजल पीसेस दिए हुए हैं, और एक जो बचा हुआ पजल पीस है उसको आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप ये देख लो कि ये टोटल कितने फॉर्म हो रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑलराइट। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सो 6 into 5 दैट इज 30, है ना।
30 आपके पास पजल बोर्ड में जो ब्लॉक्स हैं दैट इज 30, और पजल पीसेस में कितने ब्लॉक्स हैं? सो इसमें आपके 4 ब्लॉक्स हैं, इसमें अगेन 4 ब्लॉक्स, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4 एंड इसमें अगेन 5, राइट? सो 5 + 5 10, then 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So total 25 puzzle pieces are present and board में जो बचा हुआ है that is 30 में 25 तो यहाँ से लग जाएंगे, बचेगा 5 आपके पास, है ना? तो आपको बस ऑप्शंस में ट्राई करना है कि कौन सा वाला 5 है। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे देखो, अगर 2 ऑप्शंस में 5 आएगा तो हम चेक करेंगे, अगर 5 आएगा ही नहीं तो हम चेक भी नहीं करेंगे, राइट? So this is 5, this is 4, this is 3 and this is 5, right? It means A and D are correct, B and C are wrong. Okay? Okay. Next question is, which of the chairs will rock to and fro? So what they are asking, टू एंड फ्रो किस में पॉसिबल है, राइट? सो टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए एक कर्व होना चाहिए, राइट? बॉटम पे एक कर्व होना चाहिए, दैट शुड बी रोटेट फ्रीली, है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए में आप देख रहे हो देयर इज नो सच काइंड ऑफ लिमिटेशन इज देयर, कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है वहाँ पे। सो इट इज पॉसिबल इन ए, द पर्सन इज सिटिंग एट दिस पार्ट दैट कैन बी मूव टू एंड फ्रो, राइट? बी में आ रहे हैं तो भाई बी में देयर इज अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, है ना? एक प्रॉपर मूवमेंट के लिए सेंटर पे कर्व होना बहुत ज़रूरी है, सेंटर पे कर्व होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। इवन इन द स्विंग्स यू हैव सीन कि अगर ऐसा कुछ सीट्स लगे हुए हैं तो नीचे ऐसा मेटल का होता है, on that you can stand and you can move freely, है ना? So that is why B is not possible. तो थोड़ा सा आपको लॉजिकल रहना है, there is no such kind calculation, कुछ नहीं है इसमें। C में if you can see there is some hindrance, है ना? पीछे की तरफ जब मूव करेगा so there is some hindrance and because of this to and fro movement is not possible in the C. So C गलत हो गया, B गलत हो गया, D में आते हैं। D में there is a gap, बट इस गैप की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द रीजन इज हैविंग द कर्वेचर, राइट? सो कर्व की वजह से क्या हो रहा है, डी इज द ऑल्सो योर आंसर, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑप्शंस आर द सिंपल रोटेशंस ऑफ द इमेज पी? सो दिस इज वेरी सिंपल एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्वेश्चन। आपको बस रोटेट करके ध्यान देना है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं या पॉसिबल है, ठीक है? अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, राइट? सो अगर हम इसको ऑप्शन विच इज गिवन above, if I rotate it, for example, okay, 1 minute. Okay, so if I rotate, देखो यहाँ पे इस पार्ट पे है और इसमें इस पार्ट पे है, ठीक है? यहाँ पे इसमें यहाँ वाले पार्ट पे है और इस वाले में यहाँ वाले पार्ट पे, इट मीन्स 180 डिग्री का प्रॉपर रोटेशन हुआ है। जो यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है वो यहाँ पे बॉटम पे है ना? सो रोटेशन पूछा गया है, फ्लिप, और यहाँ पे फ्लिपिंग या मिरर इमेज नहीं पूछा गया है। सो ए इज पॉसिबल व्हेन यू आर रोटेटिंग दिस एट 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट करोगे यू विल बी गेटिंग दी ऑप्शन ए। बी वाले की अगर हम बात करें, सो बी इज पॉसिबल व्हेन आई रोटेट दिस पी फिगर बाई 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस। बाकी आप साथ साथ ये वाले भी चेक करोगे तो इसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? काउंट कर लो कितने एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे दिए हुए हैं एंड देन सबसे बेसिक तो आपको ऊपर से ही काउंट करना है, ठीक है? सी वाले की अगर हम बात करते हैं तो सी में एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देनी है। इन दी ऑप्शन सी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, चारों पे ऐसे कर्व बने हुए हैं, कहीं पे भी पी में ये कर्व नहीं बना हुआ है, इस वजह से सी आपका गलत है, ठीक है?
डी में अगर हम आते हैं, सो डी देखो कब बनेगा, जब आप इसको अगेन 90 डिग्री रोटेट करोगे, है ना। 90 डिग्री रोटेट करने पे क्या बन रहा था आपका, बी बन रहा था। तो बी और डी को कंपेयर कर लो। सो बी और डी को कंपेयर करने से आपको पता चलेगा दैट यहाँ पे ये पार्ट है ना, और यहाँ पे भी ये गायब है। सो इस वजह से डी आपका आंसर नहीं, ओनली ए एंड बी आर पॉसिबल। Next and the last question is shown on the left is the development of a cube. Which of the options can be created when shown development is folded, है ना। folding opening and folding का question है ये। some marks are given and this marks can be judged in the options given, right। पहले तो आप ये जज कर लो that this is one is the continuous design, ये continuous design है जो कि आपके ऑप्शंस में भी कंटिन्यू होनी चाहिए, राइट। ऑप्शन बी को बहुत ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखो देयर इज डिसकंटिन्यूटी इन द लाइन, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो इस वजह से ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन उसके बाद अगर डिसकंटिन्यूटी हो रही है तो यहाँ पे आके कहीं होगी, है ना, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा थिन हो रहा है। यहाँ पे अगेन यू कैन सी द डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है। अगेन डी इज रॉन्ग। सी इज वेरी सिंपल, सेंटर का पार्ट है, ये वाला 3 ब्लॉक्स दिखाए गए हैं, इजी, सी इज करेक्ट। ए में भी अगेन मैंने बोला ये वाला डिसकंटिन्यूअस हो सकता है बिकॉज यहाँ पे थिन होता जा रहा है, विच इज पॉसिबल। अगेन ये वाला भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, दिस इज वेरी सिंपल, ए एंड सी आर करेक्ट। सो वी हैव completed the MSQ part and then again we will be uploading the MCQ part. Thank you everyone.